गुड इवनिंग स्वामी जी। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? यस। Okay. So today we will this is not about the problem you are facing. आपके पास में you have a group, you can always put your problem there and you will get a solution of whatever kind, be it a little external support system. So we are here for a special session. एक special session है ये for Navaratri. This is a special session रिगार्डिंग नवरात्रि। नवरात्रि जो है उसको लेके हम ये सेशन कर रहे हैं। सो जस्ट टू गेट अ लिटिल सिग्निफिकेंस इन आवर माइंड, हम समझ सकें कि ये क्या है एंड हाउ यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ दिस नवरात्रि एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। आपकी जो परेशानी है उससे भी आप निकल पाए। So today is called as महालय। आज के दिन को महालय भी कहते हैं, एंड द लास्ट डे ऑफ पितृपक्ष। So what is the translation of महालय into English? अगर इसको इंग्लिश में समझें तो क्या बोलेंगे? महा, ग्रेट, लय मीन्स रिदम, द ग्रेट रिदम। सो रिदम आर ऑफ टू काइंड्स। लय जो है ना ये दो तरीके का होता है, हमेशा दो तरीके का होता है। तो क्या होता? सपोज कीजिए you are making a painting or you are making a sculpture. अगर आप कोई स्कल्पचर बना रहे हैं, somebody is not able to hear, please help her. तो स्कल्पचर अगर आप बना रहे हैं तो either it can become the way you wanted or it may not become the way you wanted. आप जैसा बनाना चाहते हैं या तो वैसा बनेगा या तो वैसा नहीं बनेगा। It also happens for all the recipes ना। आपको सांबर भी बनाना है तो या तो आपके पसंद का बनेगा या तो नहीं बनेगा। Isn't it? You want to keep yourself in a particular manner. आप अपने को खुश रखना चाहते हैं तो या तो आपकी इच्छा पूरी होगी या तो नहीं होगी, है कि नहीं? So everything has two aspects associated with it. If you do everything pro rhythm, whatever you want, आप जो चाहते हैं उस हिसाब से, उस लय से करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी। जो आप चाहते हैं अगर उस तरीके का लय नहीं बनता आपके अंदर तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। अच्छा, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, क्रिकेट जैसे गेम में, तो वो कहते हैं ना कि आज इसका फॉर्म अच्छा नहीं है, आज इसका फॉर्म अच्छा है। आप लोगों के साथ भी होता है ना, सम डे यू आर वेरी वेरी, whatever you do you are successful, and other days whatever you do it's a disaster. नहीं होता है ना, सबके साथ में होता है ना, ये सबके साथ में होता है। अभी आपने कुंभक करना शुरू किया, आपको लगा हेल्थ एकदम से चमत्कार होगा, पर हुआ नहीं। हाँ, फिर क्या, गर्मी बढ़ गई, फिर कहोगे अरे मेरी तो परेशानी बढ़ गई, क्योंकि आप रिदम में नहीं थे, आप सुर में नहीं हैं। अगर सुर में हैं
तो आपका काम पूरा होगा। और सुर में नहीं है तो क्या कहते हैं इसको? असुर। क्या कहते हैं? असुर। तो जब असुर हावी होता है आपके, तो आपके काम नहीं बनते। जब सुर हावी होता है तो आपके काम बनते हैं। यस और नो? इज इट इन योर एक्सपीरियंस और नॉट? See, Kaushalya, I'll speak English in between, but I'll not leave anything. But see, I'll switch over also. So there are certain days where you are in rhythm or you are in surah, huh? And there are certain other days where you are not in surah or you are a surah, huh? A surah. So when you are in surah, when you are in rhythm, जब आप लय में होते हैं तो आपको आनंद आता है, isn't it? That happiness is the reason for happiness is surah. What is surah? The outcome of surah, alcohol. आप इसे आम भाषा में क्या कहेंगे? दारू. What is surah? It is alcohol, but actual alcohol is not the real meaning of surah. We call alcohol also as surah, but surah means the beautiful feeling you get when you are in rhythm. So you sing a beautiful song and suddenly it gives you happiness, है ना? आप एक सुंदर गीत गाएं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा. आप लय में कुंभक करें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा. आप डांस करें, you dance in rhythm, you'll feel very good, isn't it? You move in rhythm, you feel very good. This is surah. So surah and asura, without both of them, without these two things, life cannot happen. जीवन पॉसिबल नहीं है. So we call life as the great churning. We call life as samudra manthan. In India, we don't call something as good and something as bad. We always call pro-life and anti-life. And both of them are necessary. Because if you want to come out of certain bondages, attachments, then you will have to go anti-life, isn't it? So this culture is not about good and bad. This culture is about knowing how things happen. तो आपके जीवन में जो आप चाहते हैं, whatever you want, how can it happen? So I will be giving you some secret sutras in between. If you are alert, you can catch them. अगर थोड़ा सा अलर्ट है तो पकड़ लेंगे, नहीं अलर्ट है तो जब टाइम आएगा तब समझेंगे. क्या फर्क पड़ता है? जल्दी क्या है? बड़े जन्म रखे हो, एक के बाद एक जन्म, हजारों जन्म है. So somebody who is in hurry, थोड़ा जल्दी है किसी को, तो अलर्ट रहे. Please be alert. Otherwise you'll miss the point. So I'm telling you the sutra of success. Sutra of success. If you create rhythm in your life, अगर आप लय को क्रिएट करें अपने जीवन में, तो आपको सक्सेस मिलेगा. मगर कैसे करें क्रिएट? How to create rhythm? Because rhythm will not happen through your logic. Logic is linear movement, linear dynamism of life.
एक ही दिशा में गति को हम लॉजिक कहते हैं. So, you know, every Purnamashi we explore certain aspects of life. तो ज्वाइन कीजिएगा, पूर्णिमाश्री को जरूर ज्वाइन कीजिए. इफ यू वांट टू नो a little deeper, or if you want to go a little deeper into various aspects of life, जीवन के अनंत आयाम में किसी आयाम को समझना, तो वो हम एक्सप्लोर करते हैं हर पूर्णिमाश्री. उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं स्वामी राजविभू चैनल पे. यूट्यूब का चैनल है स्वामी राजविभू. तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां जाके आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. So last time we explored certain area of life, और हर चीज का एक दूसरे के साथ में संबंध होता है. इट्स ऑल इंटररिलेटेड. नाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, जो लॉजिकल पार्ट है वो लीनियर होता है, जो क्रिएटिव पार्ट है वो पैरेलल होता है. दिस इज व्हाट आई एक्सप्लोर्ड इन द लास्ट पूर्णमासी. कि थॉट प्रोसेस दो तरीके के होता है. आप अब दो तरीके की बुद्धि पे काम करते हैं. दो तरीके की बुद्धि होती है, एक लीनियर लॉजिकल, दूसरा पैरेलल. वो लॉजिक से आगे है. इट्स वन स्टेप अहेड ऑफ लॉजिक. सो लाइफ कैनॉट हैपन थ्रू लॉजिक. इट नीड्स अ पैरेलल डायमेंशन. So if you decode life through logic, you will end up on a wall. एक दीवार आ जाएगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे, दीवार आ जाएगी, और तब आपको पता चलेगा कि you were destroying life. आप जीवन के रिदम को फॉलो नहीं कर रहे थे. आप जो रिदम आप चाहते थे उसको फॉलो कर रहे थे. So people who are very logical are not the happy people on earth. ये आपको देखने को मिलेगा. Whatever you achieve in your life, ultimately you will end up being a disaster. आप जीवन में कुछ भी पालें, आपको जीवन का एबीसी भी पता नहीं चलेगा. और बाकी तो छोड़ दीजिए, forget about everything else. You will not be able to just create a little happiness within you. अपने जीवन में आप कभी हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकते. And the second factor, it is even more important for you people, you can never create health. तो लॉजिक पे अगर हेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आपका हेल्थ बर्बाद और बर्बाद और बर्बाद होता जाएगा. So you don't have to go somewhere else on Mars to understand this, है ना. मंगल ग्रह पे जाके नहीं समझ में आएगा. इसी ग्रह पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. अगर नहीं दिख रहा तो आंखें खोलिए. इफ यू कांट सी, ओपन योर आईज एंड डू अ लिटिल सर्च. गूगल पे आप एंटरटेनमेंट या मोबाइल पे एंटरटेनमेंट के अलावा भी कुछ कर सकते हैं, यू नो. सो डायबिटीज बढ़ रही है कि कम हो रही है? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. एपिडेमिक बन गया है साहब. आपको मालूम नहीं कि आप में से कितने लोग डायबिटिक हो. बच्चे बच्चे, इवन स्मॉल किड्स आर बिकमिंग डायबिटिक. अच्छा, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड नाउ. 40 साल 35 साल के जवान जवान लड़के हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं. नो रीजन, कोई कारण नहीं है. दे आर डाइंग एंड इट विल इंक्रीज ड्रास्टिकली. बहुत ज्यादा बढ़ेगा. कैंसर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12%. अभी एपिडेमिक बन जाएगा. थायराइड, न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, एक्स एंड पेन, दर्द.
वी हैव टेकन पेन टू अनदर लेवल। हमने दर्द को एक अलग ही आयाम दे दिया, इतने सक्सेसफुल हुए हैं दर्द बढ़ाने के चक्कर में कि क्या बोलें। It is just not physical pain that we have imparted on humanity. Emotional pain, psychological pain, and pain beyond your imagination, karmic pain, which will keep happening through generations and generations, through lives and lives and lives. भाई जेनेटिक डिजीज बोलते हैं आप, उसको आसान भाषा में क्या बोलेंगे? ऐसी बीमारी पैदा कर दी, इट विल ट्रैवल थ्रू लाइफ, हर जन्म में बीमार होंगे। कितने लॉजिकल लोगों की बातें मान रहे हैं पिछले 100 सालों में। So if logic will rule the earth will get destroyed in no time. आपके लिए शायद 100 साल ज्यादा है, होना नहीं चाहिए, बट फॉर अर्थ 100 years इज नथिंग। माइक्रो सेकंड है उसके लिए। माइक्रो सेकंड में हम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। Because the wrong people are ruling the world. Wrong people are creating education system. Wrong people are creating medical system. Wrong people are doing agriculture. एक सिंपल सॉल्यूशन मैं बताऊं आपको। मेल लीनियर थिंकिंग में ज्यादा काबिल होता है, फीमेल पैरेलल थिंकिंग में ज्यादा काबिल होती है। सो इट इज द पैरेलल थिंकिंग which actually makes linear thinking happen. तो इसको और सीधे शब्द में बताऊंगा, ये फेमिनाइन है जिसकी वजह से ये कॉस्मोस, ये यूनिवर्स बना है। अब ध्यान से सुनिए, ये फेमिनाइन है जिसका ये यूनिवर्स है। द कॉस्मोस बिलोंग्स टू फेमिनाइन। ये ब्रह्मांड शक्ति स्वरूपा है। देखो और बहुत लूज लैंग्वेज में बोलूं, so male do not take much of a responsibility of a family. It is a female who takes the responsibility. Female also takes the responsibility of creation or procreation. तो शिवाला में जब आप एंटर करते हैं तो कहां घुसते हैं आप? कहां एंटर करते हैं आपको मालूम है? व्हेन यू एंटर अ शिवाला, अ टेंपल, वेयर डू यू एंटर? जिस जगह में आप एंटर करते हैं, डू वी कॉल दैट प्लेस एज गर्भगृह? तो आप देवी के वूम्ब में एंटर करते हैं, देवी के गर्भ में एंटर करते हैं, और देवी ने शिव को थाम रखा है। इकलौता देश है ये हमारा जो आज भी शक्ति उपासक है। नेम वन कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर फेमिनाइन इज रेवर्ड। एक देश बता दो, पूरी दुनिया में बता दो, भारत छोड़ के। एक देश भी नहीं है जो फेमिनाइन को समझता, और हम उन्हीं सबको फॉलो कर रहे हैं। हमारी दुर्गति, आई एम कॉन्शियसली यूजिंग दिस वर्ड, हमारी दुर्गति बहुत दूर नहीं है। पूरे संसार ने फेमिनाइन को मारा है। यूरोप, जिसको आप एडवांस कहते हो, करोड़ों औरतों को विच हंट के चक्कर में मार चुका। यूरोप किल्ड millions of females in the name of witch hunt. आप किसको फॉलो कर रहे हैं?
कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए। और दुर्गा पूजा भी मनाएंगे आप, नवरात्रि भी मनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस, जिससे वेस्टर्न रिलीजन सारे निकले, सारे रिलीजन अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस से निकले, बारिंग इंडिया। इंडिया में रिलीजन नहीं होता, धर्म होता। वहां पे फेमिनाइन की कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस ऑफ फॉर फेमिनाइन इन द एंटायर वर्ल्ड इफ यू जस्ट लीव इंडिया। ये हमारा देश है जिसपे काली जो है ना वो शिव के ऊपर चढ़ी हुई। सो द थियरी हाउ दिस यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इज शक्ति वूड शिव। शक्ति ने उत्तेजित किया शिव को ये संसार पैदा करने के लिए। तो किसका संसार है? शक्ति का संसार। सो अब इसको समझने की जरूरत है। एंड आई ऑलवेज से यू आर इंटेलिजेंट पीपल। व्हाई? बिकॉज यू वर बोर्न इन दिस लैंड। आप इस धरती पे पैदा हुए, आप समझदार लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा पढ़ लिख गए। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। और ये हार्वर्ड का रिसर्च, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जानते हैं ना, और फिरंगियों की चीज आप ज्यादा मानते हैं, इसीलिए मैं ये एग्जांपल भी लेके आ। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि 25 साल के एजुकेशन से 25 years of education will get your intelligence down by 70% irrevocably। 25 साल का एजुकेशन 70% इंटेलिजेंस खत्म कर देता और वो वापस नहीं आ सकता था। सो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। आपने थोड़ा सा, मैं इसके अंदर आपको समझाने के लिए और भी चीजें मैं लेके आऊंगा, बट एक चीज मैं लेके आता हूं। ये साइंस में पढ़ता है, साइंस की दुआई देते हैं आजकल सारे। साइंस, वेस्टर्न साइंस इज द बिगेस्ट किलिंग मशीन। शायद रिलीजन ने करोड़ों लोगों को मारा, मगर वेस्टर्न साइंस अरबों लोगों को मारेगा। और ये आपके ऊपर आ चुका है, इसकी द इंप्रेशन हैज कम अपॉन यू बट यू आर नॉट रियलाइजिंग। आप इसको समझ नहीं पा रहे। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, इफ यू डोंट अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी, ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट विल कीप ऑन मूविंग। अगर किसी चीज को आप धक्का दे दें तो चलता ही जाएगा जब तक कि इसको कोई फोर्स रोकता नहीं है। राइट? इसको, हालांकि ये थ्योरम इंडिया का है, भारतीय परंपरा में है, बट आजकल इसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ये हमारे देश में ये बहुत पहले से, ये सारे लॉज पहले से ही बने हुए हैं ना। कोई लोग चुरा के ले जाते हैं तो वो अपना नामकरण संस्कार करते हैं, अपना नाम डालते हैं। ये फिरंगी ने सब कुछ चुराया हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। उनकी बुद्धि ही नहीं है कि कुछ और कर सके। दूसरों को रोक दिया, हमको आगे बढ़ने से रोक दिया। यहां के एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया, यहां की यूनिवर्सिटीज जला दी, चुरा चुरा के ले गए। उसी पे रिसर्च किया, फिर कहते हैं हमारा काम। तो इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इट इज नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हमें आज समझना पड़ेगा, अपनी चीजों पे अधिकार जमाना पड़ेगा, बट दिस इज द लॉ। पर देखो वो फिर भी नहीं समझ पाएंगे। मैं उनकी कितनी गलतियां, उसने से देखा एक सेब गिरा, न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉलिंग डाउन, देन हेंस ग्रेविटी। उसके पहले ग्रेविटी नहीं था क्या? वी हैड लॉज ऑफ ग्रेविटी बिफोर दैट। हमारे देश में ये बोला जाता था इसके बारे में। द वे द लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज डिस्क्राइब्ड इन इंडिया वॉज फिनोमिनल। अब उसको किसी ने नहीं पूछा कि भाई पेड़ क्यों ऊपर उग गया। फल तो नीचे गिरा मगर पेड़ क्यों ऊपर उगा? या पेड़ नीचे उगते हैं? आर यू कंफ्यूज? पेड़ ऊपर उगता ना। इफ देर इज ग्रेविटी देन व्हाई अ ट्री ग्रोज अप, व्हाई यू ग्रो अप। आप कैसे लंबे क्यों हो जाते हैं? आपको तो नीचे जाना चाहिए था।
हाँ, तो सवाल भी पूछना आना चाहिए और तभी उसका सही जवाब भी मिलेगा. So there must be an upward lifting force, जिसको हम उड़ान. In the webinar you must have heard these words. I explain these things. So perpetual motion, if an object is pushed, कोई चीज अगर छोड़ दी जाती है तो हमेशा चलते रहे अगर उस पर फोर्स ना लगे. फोर्स इज अ स्टॉपिंग फोर्स ना. कोई भी उस पर जोर लगेगा तो उसको रोकेगा ना. दैट मीन्स वो असुर है ना, उसको चलने नहीं दे रहा. पर एक बात बताइए, ये सवाल, द क्वेश्चन इज व्हाट विल मेक इट मूव. उसको चलते ही रहने कौन देगा? वो दोनों ही फोर्स हैं. दूसरे तरीके से समझाता हूं, फिर आपको समझना. सो हर चीज के ऊपर एक जोर लग रहा है उसको रोकने के लिए, इजंट इट? हर चीज को रोकने के लिए एक जोर लग रहा है. एवरीथिंग इज impacted by forces which is trying to stop it. रोक रहे हैं. इस रोकने में भी you are growing, आप बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? आप बढ़ रहे हैं. You are living, your functions are happening. आपका हार्ट बीट चल रहा है, उसको रोकने की कोशिश चल रही है कंटिन्यूअसली, लगातार, मगर उसके बाद भी वो बीट कर रहा है कि नहीं? सो दीज आर हैपनिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस. लेकिन सपोज कीजिए आप एक गाड़ी बनाते हैं, यू मेक अ व्हीकल. उसका इंजन है, द क्रैंकशाफ्ट, द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, द स्ट्रक्चर, द व्हील, द मूवमेंट एंड सो मेनी थिंग्स, है ना? सो व्हेन एवरीथिंग कम टुगेदर इन एन इंटीग्रल मैनर, दिस इज अ कार. ये एक व्हीकल है. वो व्हीकल चलेगा और उसको चलने के लिए different components which have different forces and factors, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे. These will all come together for the car to function. सब एक साथ आ जाएंगे उस गाड़ी को चलाने के लिए. ये टोटल इंटीग्रल फोर्स जो है, जो जिसकी वजह से गाड़ी चल रही है और बिखर नहीं रही है, it is not disintegrating. The integral force which is making a car an entity, है ना, इसको दुर्गा कहते हैं, which has come from a word called Durga. Durga means which cannot be disintegrated. दुर्ग का मतलब क्या है? जिसको भेदा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, बिखेरा नहीं जा सकता. We don't have equivalent terms in English. आप जब भी संस्कृत को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, you always choose a word which doesn't signify that संस्कृत word. संस्कृत का इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है. So Durga means which cannot be disintegrated. So there are two forces. वापस आ जाते हैं. Let's come back. There are two forces, Sura, Asura. Integrating force, disintegrating force. एक फोर्स ऐसा है जो आपके हार्ट को चलाने की कोशिश. One force is making the heart do its action. The other force is trying to stop it. दूसरा फोर्स क्या कर रहा है? उसको रोकने की कोशिश कर रहा है. तो ये दोनों के बैलेंस में लाइफ होती है. सो दिस इज कॉल्ड ए समुद्र मंथन. एक फोर्स कभी ज्यादा बढ़ता है, दूसरा वापस ले आता है, तो बैलेंस रहता है. एंड इन दिस बैलेंस लाइफ हैपेंस. सो असुर इज डिसइंटीग्रेटिंग फोर्स, सुर इज इंटीग्रेटिंग फोर्स. सो वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, if you are still living, it is because of Durga force or Durga force. You are living because of that integrating, overall integrating force. उसमें बहुत सारे अलग अलग components हैं, छोटे छोटे फोर्स हैं. 84 basic forces that I call, isn't it?
अपने वेबिनार में बताता हूं 84 फोर्सेस, बट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दोज 84 फोर्सेस इज कॉल्ड एज दुर्गा. So where is Durga? Is she away from you? वो दूसरे के अंदर काम कर रही है, आपके अंदर काम कर रही है. इट इज वर्किंग इन, इफ यू आर लिविंग इट्स वर्किंग इन यू. अगर आप जिंदा हैं तो वो है, तभी आप जिंदा हैं. द मोमेंट शी गोज, यू आर गॉन. नाउ अब आते हैं, लेट्स सी वेरियस लेवल्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फोर्स. ये इंटीग्रेटिंग फोर्स अलग अलग तरीके, एक एटम को भी चला रहा है, एक छोटा कीटाणु स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी चला रहा है, आपको भी चला रहा है, एंड यूनिवर्स को भी चला रहा है. देयर इज अ इंटीग्रेटिंग फोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स. ये यूनिवर्स को भी इंटीग्रेट, एक ब्रह्मांड को बना के रखा हो. नाउ दिस फोर्स हैज वेरियस लेवल्स ऑफ फंक्शन, but majorly if she is able to maintain the universe, everything in it will follow the suit. अगर वो पूरे ब्रह्मांड को बना ले तो उसके अंदर की चीजें बन जाएंगी. So it is the greatest force, and you see the story. आप स्टोरी दे सुनिए, बस स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए. If you understand the story, you will understand what you will also decode a mantra, a sutra that you can apply in your life. अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. So Mahish, there is a word called Mahish. What does it mean? It means the greatest. Mahish का मतलब क्या होता है? Greatest. और Asur is disintegrating force. So if there is a greatest integrating force, there is an opposite force also. Greatest disintegrating force. उसका नाम क्या पड़ गया? महिषासुर. महिषासुर. So the story goes like Mahishasur was creating havoc. वो पूरे यूनिवर्स को डिसइंटीग्रेट करने लग गया था. So what happened? Every देवी देवता got together. यानी छोटे छोटे सारे फोर्सेस इकट्ठे होके they gave her something out of themselves. अपने अंदर से कुछ ना कुछ निकाल के दिया. What does it mean? It was created by coming together every small forces of this universe, and they created Durga. And Durga then killed Mahishasur. उसका जो डिसइंटीग्रेटिंग ओवरलोड था ना, उसको उसने खत्म कर दिया, बैलेंस कर दिया. एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू एक्सपीरियंस लाइफ. हम जीवन को अनुभव इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. यूनिवर्स एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है, द यूनिवर्स इज एग्जिस्टिंग बिकॉज दुर्गा इज देयर टू बैलेंस इट आउट. अब आते हैं दूसरे पक्ष पे. लेट्स अंडरस्टैंड इट, हाउ इट हेल्प्स. हमारे जीवन में किस तरीके से ये काम कर रहे हैं. सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ क्रिएशन. जीवन क्रिएट करने का एक प्रोसेस है. सो इट हैपन्स थ्रू, बेसिकली it happens through 9 different paths. 9 रास्ते से जीवन बनता है. So the first one is Shiva Shakti principle. When the Shiva Tattva divides into 2 parts, Shiva and Shakti. So when something which is absolutely still, जो कि बिल्कुल स्थिर है, कौन सी चीज स्थिर होती है आपके एक्सपीरियंस में? आपके अनुभव में कौन सी चीज बदलती नहीं है जल्दी? स्टोन, शैल,
शैल ना, स्टोन जो चेंज नहीं होता, जब उसके अंदर चेंज आया, जब उसके अंदर चेंज आया, देन वी कॉल दैट चेंज एज शैल पुत्री। क्या कहते हैं? शैल पुत्री। यानी यूनिवर्स व्हेन इट वाज एब्सोल्युटली स्टिल, नो चेंज, then dynamism, the possibility of dynamism happened. The possibility of dynamism happened. This possibility created another possibility. This possibility created creative possibility. कुछ बनाने की possibility इसके जरिए आई, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं या ब्रह्म तत्व कहते हैं. And the force of this Brahma Tattva is Brahmacharini. The force of that Brahma Tattva is Brahmacharini. फिर next possibility. Without moon, let's come to earth. अभी बाहर की बात कर रहे थे, अब पृथ्वी पे आ जाते हैं. अब पृथ्वी पे आ जाते हैं. Life on earth cannot happen without moon. So moon is the creator of life on earth. So the force which controls the factor moon is called as Chandra Ghanta. The fourth possibility, after the moon, when there is a possibility of life, life always happens through an ellipsoid or an egg form or under, है ना? Or you can also call it pinda. In a physical form, it is pinda. ये होता है ना, बिना उसके नहीं हो पाता, बिना उसके लाइफ बन ही नहीं पाएगी, रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगी. So that is Kushmanda. Then comes something. Kushmanda जो है ना, वो ऐसे मान के चलो कि a possibility of replication और reproduction की possibility है. स्कंद माता, उसके बाद स्कंद माता, ऐसे ही चलता है ना. दिस इज हाउ यू सी फर्स्ट डे, प्रथमा, शैलपुत्री, द्वितीया, इसी तरीके से चल रहा है. आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस ऑफ लाइफ. सो कुष्मांडा, द लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम कुष्मांडा. आपके शरीर में what we call as Kushmanda is Agni Tattva. कुष्मांडा अग्नि तत्व है. ये आपके अनाहत चक्र को भी डिपिक्ट करती है. अनाहत चक्र को भी डिपिक्ट करती है. There are 12 aspects of this Kushmanda. And these are, I'm talking in terms of forces. इसीलिए अभी हम personality नहीं डाल रहे उस पे, है ना. This is not the right approach. This is a logical approach. I'm taking a logical approach, which is not the most beautiful kind of an approach, but just to, because you are using, most of you are using your mind today. You're not using your creative or the parallel mind. You're always using your linear mind. So I'm taking that approach. इसीलिए दुर्गा बोल रहा हूं, मां दुर्गा नहीं बोल रहा. So Ma Durga is the real, actually the real way in which it has to be explained.
बट मैं लॉजिकल अप्रोच ले रहा हूं, लीनियर अप्रोच ले रहा हूं, इसलिए नॉट अ वेरी गुड अप्रोच, बट बिकॉज योर माइंड इज लॉजिकल, सो आई एम ट्राइंग टू सूट दैट, उसको सूट करने की कोशिश कर। सो ये कूष्मांडा वो स्थान है जहां पे इच्छा होती है, जहां से इच्छा, आप कोई भी काम करेंगे लाइफ में, वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, यू स्टार्ट विथ एन इंटेंशन। आप इच्छा से शुरू करते हैं ना, आप इच्छा से शुरू करते हैं। तो ये अनाहत में इच्छा होती है, यहां से शुरू होती है लाइफ। द फिजिकल लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल, एट दिस मोमेंट, बिफोर दिस इट इज यूनिवर्सल, अभी इससे पहले यूनिवर्सल था, बट आपके शरीर में कब शुरुआत हो रहा है? कूष्मांडा, अग्निबल। अग्निबल आपके रस को रक्त में चेंज करता है। सो अगर आपका ब्लड नहीं बन रहा ठीक से, तो क्या चीज गड़बड़ी हो गई? आपके सपोर्ट में नहीं है कूष्मांडा और आपके शरीर में अग्निबल कमजोर हो गया, योर अग्निबल हैज बिकम वीक, सो दैट इज व्हाई वॉट एवर यू ईट इज नॉट कन्वर्टिंग टू रक्त, रस से रक्त नहीं बन पा रहा। सो दिस इज कूष्मांडा और अनाहत चक्र। देन यू गो डाउन, कूष्मांडा के बाद कहां जाता? स्कंद माता। स्कंद माता, इट इज योर मणिपूरक। और कौन सा बल है? दोष बल। सो आयुर्वेद एक्चुअली टेक्स इट एज प्राइमरी मेथड टू फाइंड आउट व्हाट इज डिफिकल्टी इन द बॉडी। सो दोष बल, वात पित्त कफ दोष. So in Ayurveda, it is always said everything starts from your navel. आपकी नाभि से सब कुछ शुरू होता है. It is Manipuraka, Skanda Mata. Now Manipuraka is all. Why it is Skanda Mata? What is Skanda? Skanda का मतलब क्या होता? Who controls 6 factors of life, physical life? स्कंद को षण्मुगम भी कहते हैं. In South India, it is he is always called as Shanmugam. He is a son of Shakti or Parvati. So there is a significance of these stories. If we decode things through logic, maybe we'll not be able to remember for long. But if we decode things through a story, the story goes on. Why we are still living when the whole world is being distorted by religion. Religion ने सारी सभ्यताओं को बर्बाद कर दिया, केवल सनातन को बर्बाद क्यों नहीं कर पाए? Because we transmitted the whole thing in stories, whole science in stories. जीवन का सारा आयाम हमने स्टोरीज में डिकोड किया. And stories do not die. And stories makes the possibility alive for the next generation to decode the truth. सच्चाई को डिकोड करने के लिए स्टोरीज आगे की जनरेशन के लिए हमेशा अवेलेबल हो सकते हैं. सो अग्नि बल, दोष बल. नाउ कम्स कात्यायनी, स्वाधिष्ठान. कात्यायनी, स्वाधिष्ठान, धातु बल. इसको और भी कर सकते हैं, और भी बात कर सकते हैं. सी आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट क्या है कि थोड़ा बहुत आज ज्ञान दे रहे हैं. इट्स ओके, बट वी जस्ट कांट गो ऑन एंड ऑन विद दिस. इसको आप ग्रहों के साथ भी जोड़ सकते हैं. नवग्रह, नवग्रह. सो द नवग्रह आर कंट्रोल्ड बाय दीज 9 नवचंडी और 9 फॉर्म्स ऑफ शक्ति. सो आगे चलते हैं. स्कंद माता, 6 फैक्टर्स क्या हैं?
6 factors basically are 6 aspects of life, or you can also know them as 6 chakras. 6 chakra: अनाहत, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, विशुद्धि, आज्ञा. Sahasrahara is not a chakra, right? So 6 चक्रों पे जो काबू कर सके, ही स्कंद और षण्मुगम. और वो किसकी वजह से वो काबू कर पाया? शक्ति. Who is his mother, right? So this bala, it is called as dhatu bala. When your rasa converts to rakta, it is agni bala. When rakta converts to mansa, it is dosha bala. When mansa converts to meda, it is dhatu bala. ठीक है? Now comes, फिर उसके बाद लाइफ आती है मूलाधार में. From स्वाधिष्ठान it comes to मूलाधार. This is a natural progression of life. जीवन का ये नियम है, और आपके जीवन का भी ये नियम होना चाहिए. I'll tell you what, I'll tell you how. अभी बताते हैं, पहले इसको हम थोड़ा डिकोड कर रहे हैं. So स्वाधिष्ठान comes to स्वाधिष्ठान, कात्यायनी. Then comes Mooladhara, Kala Ratri. So, Kala Ratri. Kala Ratri is a pure form of tamas, जिसको आप tamas बोलते हैं ना. You must have heard these words, tamas. Kala Ratri is a pure form of tamas. Because of tamas, Kali, Kali, in which all these devis are integrated, is pure form of tamas. Tamas से ही जीवन होता है. Without Kali, life cannot happen. So बिना काली के जीवन पैदा ही नहीं हो पाएगा. बिना तमस के जीवन हो ही नहीं पाएगा. So tamas is responsible for life and the robustness of life. जीवन को का ठोसपना जो है ना, वो तमस की वजह से होता है. अगर आपके जीवन में तमस नहीं है, यू कैन नॉट बी हेल्दी. सो मूलाधार इज ऑल्सो अ सीट ऑफ तमस, is also the seat of Kalaratri. And Mooladhara is a place where the effect of gravity happens. जो ग्रेविटी का असर है आपके शरीर पे, वो मूलाधार पे होता है. That is why we call Mooladhara as Ganapati, the controller of the impact of gravity on the body. Without Prithvi, बिना पृथ्वी के आप पैदा नहीं हो सकते ना. Without earth you cannot be born. So there has to be a place in the body where the impact of earth has to be felt, and there has to be a controller of that factor. So Ganapati is the controller of the gravitational center of your body. That is why he is Pratham Pujaniya. वो सीट नहीं बनेगा तो आपका शरीर नहीं बनेगा. If that seat is not formed, your body will not be formed. It cannot be formed, or it cannot be made. Building होता है ना, the structure, you actually find the center of gravity of that structure. अगर उसको आप strong कर देते हैं, so वो earthquake proof हो जाता है. That building will never fall. Though the center of architecture is strengthening the center of gravity of a structure. और आपका क्या होना चाहिए? गणेश तत्व को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए. यानी गणेश हमेशा
कैसे स्ट्रांग होंगे? तमस से। अब मैं ऐसी बातें बोलूंगा जो आपने सुना नहीं है, बट मैं उसके पीछे का लॉजिकल रीजन दूंगा आपको, और आप ये आसानी से समझ सकते हैं। सो इट इज काली, और अनदर एस्पेक्ट ऑफ शिव विच वी कॉल एज काल भैरव, काल भैरव, which is a creator of life, because of which life gets integrated, जो पकड़ता है आपके जीवन। तो इसमें दो एस्पेक्ट है, इट ऑल्सो होल्ड्स, बट यू ऑल्सो हैव टू मूव अहेड बाय रिलीजिंग इट। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक उस होल्ड को रिलीज नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। सो पितृ इज व्हाट हैज क्रिएटेड यू। आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादा की वजह से आप पैदा हुए। सो दे लिव थ्रू यू, आपके अंदर ही है वो एस्पेक्ट। एवरीथिंग ऑफ देम इज इनसाइड यू। उनकी टेंडेंसीज जेनेटिकली आप पे आई हुई है कि नहीं आई? आजकल तो बीमारी भी आ रही है ना, डायबिटीज बाप को है तो बेटे को हो जाएगा, मां को है तो बच्चे को हो जाएगा। तो डायबिटीज हो सकती है, टेंडेंसीज नहीं आ सकती क्या? तो उनकी टेंडेंसीज अगर आप में आती हैं तो इट विल नॉट हेल्प यू मूव अहेड इन योर लाइफ। अगर बहुत ज्यादा आपके पिता आपके थ्रू या आपकी मां आपके थ्रू जीना चाहेंगे तो आपका जीवन तो है ही नहीं ना कुछ। यू रिमेन नल एंड वॉइड। सो प्रोग्रेशन, फॉर प्रोग्रेसिंग अहेड, you have to come out of that attachment of tendency. अगर आपके पिता बीमार, आप बीमार, आपके बच्चे और बीमार, तो तीसरी चौथी जनरेशन तो पैदा ही नहीं होगी। सो पितृ तर्पण इज वेरी वेरी एसेंशियल इन एवरीबडीज लाइफ। इफ यू थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट इज नॉट हैपनिंग, अगर आप सोचते हैं कि जो मैं जीवन में चाहती हूं वो नहीं हो पा रहा है, तो कहां रुके हुए? किसने रोका हुआ? वन ऑफ द मेजर रीजन इज योर पितृ टेंडेंसीज। ऐसा नहीं है कि आपने एक्वायर नहीं किया कोई टेंडेंसी और वो रोक नहीं सकता। इट कैन ऑल्सो हैपन। यू विल हैव टू ब्रेक दोज ऑल्सो, बट ये पक्ष तो पहले ब्रेक करो, उसके बाद अपनी टेंडेंसीज पे काबू पाइए, फिर आगे बढ़िए। अगर आपके जीवन में बीमारियां बहुत ज्यादा है, इट कैन ऑल्सो बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर एंसेस्ट्री। आजकल तो सब कुछ उसी पे डाल देते हैं ना, मेडिकल साइंस। जेनेटिक है जी, जेनेटिक है जी, जेनेटिक है जी, जेनेटिक है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या होता है, और हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है। जेनेटिक इज जस्ट अ वेरी स्मॉल मैनिफेस्टेशन ऑफ पितृपक्ष। तो उसको ठीक, तो पितृ तर्पण तो करना पड़ेगा साहब। नहीं करोगे, नहीं करोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर बोलोगे कि कुछ होने रहा। सी द वे इट हैज बीन प्लेस्ड। ये पूरा पक्ष पितृ तर्पण का पक्ष है, पितृपक्ष हो, एंड देन ओनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग अहेड इन लाइफ। जीवन में आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। मूलाधार के बारे में बात कर रहे थे, कालरात्रि, गणेश तत्व भी थोड़ा सा बताया, व्हाट इज दैट, एंड आई एम बीइंग प्योरली लॉजिकल। सो मैं रादर देन अ पर्सनालिटी, दैव बहुत सुंदर भाषा है, उनको दैव से बुलाना चाहिए, लेकिन आई एम जस्ट यूजिंग द डिहाइड्रेटेड लॉजिक टू मेक यू अंडरस्टैंड। जिसमें रस नहीं है वो लॉजिक है। नेक्स्ट, मूलाधार। मूलाधार is all about, till मूलाधार it is all about living a life, producing a kid, बच्चे पैदा करना, earning money, earning fame, जीवन में नाम कमाना, important होना, it is still मूलाधार. Now once you get it, please understand, once you get it,
एक बार पैसा मिल जाए आपको, जब पैसा नहीं है तो पैसा इंपॉर्टेंट होता है, एक बार पैसा मिल जाए तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं बचता। आपकी पसंद की नारी आपको जब तक ना मिले तब तक वो सबसे प्यारी, और जब मिल जाए तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती। ये सभी जानते हैं ना। एंड द सेम हैपेंस फॉर द अदर पार्ट ऑल्सो। तो पहले तो आप कोशिश कीजिए जो कुछ चाहिए वो पाने की। दिस इज लाइफ, दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्डली लाइफ। इसमें रत्ती भर भी कमी नहीं छोड़ना। डोंट स्पेयर even a single stone or a sand to achieve whatever you want in your life. लेकिन जब मिल जाएगा आपको, when you get it, then actually you would want to be free of it. अगर वो आपको मिल जाए कोई चीज और कुछ समय के बाद आप उससे बंधन जो है, आप जो लिमिटेशन होती है उसकी वजह से उससे निकलना चाहते हैं। Now this is what Patanjali describes in his Yoga Sutra. First shloka. What is the first shloka? If you understand the first shloka, तभी आगे possibility. What is the first shloka? It is Athaha Yoganusasanam. ये कब बोलते हैं पतंजलि? When you have lived a fulfilled life, then it is time for yoga. It is time to come out now. वो क्या बोल रहे हैं? अब आपने अच्छे से कर लिया, सेटिस्फाई हो गए, अब समय है इससे निकलने का। Now it is time to be free of it. क्योंकि इंसान के जीवन में पकड़ने से ज्यादा फ्रीडम इंपॉर्टेंस रखता है। In human life, you know, when you want something, you really want it, but that is important for you. But you will realize the importance of freedom only after you are satisfied, fully satisfied. दुनिया में कोई और कल्चर in this world, no other culture work towards mukti, moksha. Every culture work towards achieving. उनको पता नहीं किस गॉड के पास जाके गोद में बैठना है, समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है बुद्धिहीनों ने वो कल्चर पैदा किया है, तो उसे पॉलिटिक्स कहना ज्यादा बढ़िया है। इट्स अ पावर गेम और कुछ नहीं है। दिस इज द ओनली कल्चर विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम। और आप फ्रीडम अमेरिका से सीखोगे जाके? सो हमारी भारतीय सभ्यता फ्रीडम के लिए काम करती है। आपको अलाउड है कुछ भी करना, यू डू एनीथिंग, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड अल्टीमेटली इट द फ्रीडम, इट इज द फ्रीडम विच मैटर्स। तो आप विवाह कीजिए, मगर ये समझिए कि विवाह भी फ्रीडम अचीव करने का एक जरिया है। यू डू बिजनेसेस, you earn money, but you must understand that is also a ladder towards mukti, moksha. Worldly life is a ladder towards mukti, moksha. और इसको बिना इस रास्ते को तय किए अगर आप गए तो आप परवर्ट हैं। So what you call as spirituality, please don't rush towards spirituality, because spirituality can take you out of your disease. You think that spirituality can give you money. स्पिरिचुअलिटी से आप अल्टीमेटली करना क्या चाह रहे हो? अपनी बीमारी तो भगाना चाह रहे हो। कमर में बहुत दर्द है, अगर भगवान सामने आ जाए तो क्या मांगोगे? अरे बॉस थोड़ा कमर का दर्द तो कम करो। और तो कुछ मांग नहीं सकते ना। इफ यू आर हंग्री, व्हाट विल यू आस्क?
ईश्वर, पेट भर दो मेरा यार। इफ यू आर इनटू डिजीज, व्हाट विल यू आस्क फ्रॉम ईश्वर? मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे को पैसा दे दो, गिव मी सम फेम, गिव मी सम पोजीशन। जो कमी है वही मांगने तो जा रहे हैं। Why you are terming as spirituality? Because spirituality, adhyatma, is all about becoming mukta. Yoga is all about becoming mukta. Now you want to do yoga because you have a back which is paining, but it's a very ridiculous situation. आप मुक्ति का रास्ता अपना रहे हैं अपने बैक पेन को कम करने के। So Vishuddhi, if you want to take a jump to Vishuddhi, then you should be satisfied with life. तो वो तब तक नहीं होगा जब तक आप जीवन से संतुष्ट ना हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज महागौरी। शी इज विशुद्धि। और आपके शरीर में ये विशुद्धि कैसे काम करता है? मनोबल, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आप छाती ऐसे उठा के, सिर उठा के चलते हैं, आप बेसिकली विशुद्धि दिखा रहे हो साहब, आप विशुद्धि दिखा रहे हो और कुछ नहीं। सो इफ योर कॉन्फिडेंस हैज गॉन डाउन, मनोबल अगर कमजोर हो गया तो होगा क्या? थायराइड तो होगा ना। और थायराइड के लोगों में विक्षिप्तता, मानसिक विक्षिप्तता होती है, मनोबल बिल्कुल कमजोर, हिला हुआ होता है मन। सो मनोबल, अस्थि टू मज्जा, बिफोर दैट देह बल। मूलाधार गिव्स यू देह बल, मूलाधार से देह बल आता। देह बल कन्वर्ट्स मेद टू अस्थि। मेद क्या होता? द लुब्रिकेटिंग कनेक्टिव टिश्यू, द लुब्रिकेटिंग कनेक्टिव टिश्यू। और इसको हम एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट, एचडीएल, एलडीएल, द लुब्रिकेटिंग शीथ इन बिटवीन टू सेल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने बिना लुब्रिकेटिंग, बिना एडिपोज टिश्यू के कुछ नहीं हो सकता, काम नहीं चलता। सो फ्रॉम एडिपोज मेद टू अस्थि, इट कंडेंसेस टू फॉर्म कार्टिलेजेस एंड बोन्स। मेद कंडेंसेस टू फॉर्म कार्टिलेजेस एंड बोन्स, और मेद कन्वर्ट्स इनटू कार्टिलेजेस एंड बोन्स। तो मेद को अस्थि में कन्वर्ट आपका देह बल करता है, मूलाधार करता है। मूलाधार जितना स्ट्रांग होगा उतनी हड्डियां स्ट्रांग होगी, ऐसे मान के चलो। तो आजकल हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सो मेनी थिंग्स। व्हाई? बिकॉज देह बल हैज बिकम वेरी वीक एंड मूलाधार हैज बिकम वीक। तो गणेश तत्व वीक हो गया, ऐसा मान के चलिए। और क्या? कालरात्रि कमजोर हो गई, उसकी शक्ति कमजोर हो गई, ऐसा मान के चलिए। देन कम्स महागौरी। सो फ्रॉम देह बल टू मनोबल, देयर इज अ जंप। अगर देह बल होगा तभी मनोबल होगा, वरना नहीं होगा। इफ योर बॉडी इज स्टर्डी, रोबस्ट, you will have confidence, otherwise you will not have confidence. So manobala, from deha bala to manobala, from bone to bone marrow. So bone marrow, मनोबल से bone marrow बनता है। What is bone marrow? मज्जा, we call it मज्जा, which is, मज्जा is not exactly bone marrow, ऐसा translate exactly नहीं। तो मज्जा means which is within the bone, which is behind the bone. So majja, and then in the end it is shukra, लास्ट में शुक्र है। और वो क्या है? मज्जा टू शुक्र। वो कौन सी देवी आ गई? लास्ट वाली देवी कौन सी आ गई?
सिद्धि दात्री. So this is ojas bala. This is ojas bala. If you allow the shukra, if you allow shukra to transfer into something, it will transfer into ojas. ठीक है? It will transfer into ojas. That is why wasting shukranu, raja and virya, especially in this culture, we say do not waste virya if you want to evolve. अगर आप इवॉल्व होना चाहते हैं तो वीर्य को वेस्ट ना करें, रज को वेस्ट ना करें. फीमेल्स के लिए ये लागू नहीं होता, बिकॉज फीमेल्स आर मेंट टू एंजॉय द यूनिवर्स. मेल्स आर मेंट टू डू द लेबर्स वर्क. आदमी जो है ना थोड़ा लेबर टाइप का है, और औरत फीमेल इज ऑलवेज अ क्वीन. हाँ, तो फीमेल कैन एक्चुअली इवॉल्व बाय समबडीज एवोल्यूशन. अगर आपका पति इवॉल्व करता है तो आप वैसे ही इवॉल्व. दे कैन इवॉल्व थ्रू इमोशंस. इफ यू अटैच योर सेल्फ टू योर हस्बैंड और समबडी, अ मेल, अ गुरु, सो आपके पास वो शक्ति है कि आप उसकी शक्ति को खींच लोगे. सो साधना वो करेगा, फल आपको मिलेगा. सो पति अगर काम भी करे तो पैसा तो आपको ही मिलता ना, है कि नहीं है? So that is why feminine has a different aspect. If she evolves her emotion, just वो attachment तो वैसे ही है feminine में, वो केवल attachment को बढ़ा दे. She will evolve. उसको कुछ करने की जरूरत नहीं. If she just serves, अगर एक फीमेल केवल सर्व करे किसी को मन से, she will evolve. She doesn't need any sadhana. But male will have to do a lot of sadhana. दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा, फीमेल नेवर लूजेस हर वर्जिनिटी. Only male loses his virginity. After every cycle, female is virgin again. After every delivery, female is virgin again. ठीक है? और आपके अटैचमेंट आपको मालूम हो चाहे नहीं हो, एक डिलीवरी हो जाए उस आदमी से तो अटैचमेंट आपका ब्रेक हो जाता है. आप जबरदस्ती उसके साथ में पड़े रहते हो उसके पीछे. Because of security, nothing else. Just because of security. You know that it's gone. So female never loses her virginity. Male loses their virginity. तो ये आशीर्वाद, कृपा है, देवी कृपा. हर फीमेल के ऊपर देवी कृपा. Ideally, female should rule the world. अगर सरकार और कॉर्पोरेट में फीमेल हेड बन जाए ना, you'll see 80 to 90% of problems will just vanish. और तभी हम कन्या पूजन करते हैं. When she is in touch with that divine feminine, देवी के साथ जब तारतम्यता होती है प्यूबर्टी से पहले, वो देवी ही है. जब प्रेग्नेंट होती है तो देवी ही है. When she is in a Rajaswala period, she is a Devi. Earlier, kings used to come to a female who is in Rajaswala period to just tell with her sixth sense what is he supposed to do. क्योंकि जब आप रजस्वला होते हैं उस समय आपका सिक्स सेंस, पैरेलल सेंस बहुत हाई होता है. जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका पैरेलल सेंस, क्योंकि आप नहीं होते उस टाइम पे,
उस टाइम पे द यूनिवर्स इज क्रिएटिंग अ बेबी इनसाइड यू. यू कांट क्रिएट इट, यूनिवर्स इज क्रिएटिंग. सो वो जो त्रिपुर सुंदरी है, वो आपके अंदर वो बेबी को क्रिएट कर रही हो. यू आर अ देवी एट दैट टाइम. सो वी डू कन्या पूजन, हम करते हैं इस टाइम. नाउ इसका इस्तेमाल कैसे कर, हाउ यू कैन यूज इट. You know, who is responsible for this opportunity of Navaratri that we get on earth? कौन responsible है इसके लिए? Who is responsible? मैं क्योंकि लॉजिक में बात कर रहा हूं तो मैं वो सारे तमगे हटा दूंगा, ठीक है. इट इज राम. So what happened? Without duality, without feminine, universe can't be created. So Ravana would go to Kailash, but he would always neglect the Shakti, Parvati. He would always pay his reverence to Shiva, not the Parvati. So he was, Shakti was Vimukha. यानी शक्ति भी नहीं दे, आप नहीं देखेंगे शक्ति की तरफ, शक्ति देखेगी आपको? नहीं देखेगी ना. जिसके लिए आप ओपन नहीं है, क्या वो आपके जीवन में होगा? कभी नहीं होगा. इफ यू आर नॉट ओपन टू समथिंग, दैट विल नॉट हैपन इन योर लाइफ. सो रावण ने शक्ति को विमुख कर दिया. देन राम कुड सेंस इट, राम को पता था. एंड विभीषण ऑल्सो सेड इट कि शक्ति विमुख है रावण से. वीक पॉइंट पता चल गया ना. देन व्हाट राम डिड, राम ने शक्ति, दुर्गा, विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, ही इन्वाइटेड हर, आवाहन किया कि यू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट ऑन अर्थ. पृथ्वी पे आपकी उपस्थिति हो, ऐसा आप करें. And she came. And she came. Why? It will only come if Rama invites her? No. She is available for everybody. The only question is, are you open to her? Are you open to her? So in Bengal, they always celebrate it as if the daughter is coming home. कि मायके आ रही है देवी, यानी वो पृथ्वी को ऐसा सोच रहे हैं ये उसका घर है, तो वहीं आ रही है ना. तो अपने पिता के घर में आ रही है. शी इज कमिंग टू हर होम, मैटरनल होम. और जब वो जाती है, जब विसर्जन करते हैं, जब वो जाती हैं, तो रोते हैं ना. एंड एवरी फैमिली एक्चुअली क्राइज, क्योंकि बेटी घर से जा रही है. सो इट इज बिकॉज राम, इट इज बिकॉज ऑफ राम. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एट दिस टाइम. इसका एक और नवरात्र में भी होता है ये, बट दिस इज रियली इंटेंस. अगर आप सच में लय में आ जाए, इफ यू जस्ट कम इन रिदम. एंड हाउ कैन यू कम इन रिदम? if you are celebrating. When you are celebrating, your logical dimension is down. Your logical dimension is down, your creative aspect or sixth sense is up. Through that you can sense her,
उसके जरिए आप दुर्गा शक्ति को महसूस कर सकते हैं. एवरी वन ऑफ यू कैन डू दैट. जस्ट यू हैव टू पुट योरसेल्फ डाउन. आपकी आइडेंटिटी को थोड़ा कम रखना पड़ेगा. So that's how she came. In 9 days, she became Siddhidatri. And on the 10th day, Ravan was killed. Right? और भी significance अगर बताऊं, because you will have to observe these things. You will have to involve in these things. रामायण तो होगा भी नहीं किसी के घर में, बहुत कम लोगों के घर में ही होगा. Don't even keep रामायण. बताओ. How many days Ramayana war was fought? किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं. The actual war days were 72. 87 total number of days. इसमें 15 दिन उन्होंने रेस्ट किया, बीच में वो हॉलीडे लेते थे. So exactly 72 days. How many nadis are there in your body? 72,000 nadis. Ramayana is all about how life happens inside your body. आपके शरीर में कब कौन सा हार्मोन कहां पे कब होता है. रामायण इज अ होल रोड मैप टू दैट. रोड मैप है आपके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर जो काम होते हैं उसका. देयर इज अ पर्सन इन वेस्ट, ही इज अ राम भक्त, मतलब अमेरिकन बंदा है, but a scientist, he has actually decoded the whole Ramayana in terms of what hormone, what function, what river. कभी ऐसा भी देखा करो, आपको पता चलेगा. Okay, so how many days Mahabharat war was fought? Exactly, Suruchi, 18 days. अच्छा, 9 plus 18, 9 plus 18, 9 days तो अभी नवरात्रे आ गए, एंड प्लस 18 कर लो, कितना हुआ? 27, 27.3 exactly. That is the time period in which moon makes one revolution. Revolution कहेंगे ना, और रोटेशन, whatever. एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का मून. So this is a period of Samudra Manthan. 27 nakshatra, exactly. Out of which the first 9 days is feminine, the other days are masculine or mix. But without feminine, masculine cannot happen. So first 9 feminine and then masculine. So Mahabharat war, it tells you about how if a male does things in the world, how he will do things in the world. So if you want to understand politics, geopolitics, social politics, social ecosystem, family ecosystem, you look at Mahabharata. Everything is there. सब कुछ है वहां पे. You can also understand how we go ahead. आगे कैसे जाना. And in such detail which is mind-boggling. तो अगर आपको वर्ल्डली लाइफ में हाउ टू टेक एन एक्शन, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये समझना है, तो रीड महाभारत. एंड आउट ऑफ दैट महाभारत, इफ यू वांट टू रीड इट इन कंसाइज, देन भगवत गीता. आपको हर सॉल्यूशन मिल जाएगा वहां पे. एवरी सॉल्यूशन यू विल फाइंड देयर. द प्रॉब्लम इज you will, if you read only once, you will not get anything. So
When you read the 100th time, then your logic will drop and something will start popping up. इसीलिए इन सब चीजों को बार बार पढ़ा जाता है. एंड more importantly, you should sing it, not read it. रामायण गाने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है. If you sing it, you will get much more essence of Ramayana or Gita. If you read it, you may not understand it, but if you sing it, you will get every essence of it. Right? तो अभी क्या करना है? How to access these Navchandis or 9 Devis? How to access? There are certain things that we do. First of all, how can you, the question really is, how can you drop your logic for some time? जिस समय आपका लॉजिकल एस्पेक्ट थोड़ा गिर जाएगा, आपके अंदर देवी प्रवेश हो जाएगा. So when your logical aspect will drop, there are few things that you can do. If you just keep your body less stuffed, शरीर में को भरे नहीं फूड से. If you keep your body light, especially if you are very hungry, your logic drops. जब भूख हो जाती है ना आपको, आपके सारी दुनिया के लॉजिक खत्म हो जाते हैं. आप बहस नहीं करना चाहते उस टाइम, आप भोजन करना चाहते हैं. So if you are very hungry, your logic will drop. Second thing, if you are dancing and singing, you don't exercise your logic, you exercise your creativity. You try to get in rhythm, लय में आने की कोशिश करते हैं. So bhajan, kirtan, dancing, these are all things that can drop. Through that you will drop your logic. Right? If you are awake at night, your logic actually goes for a toss. अगर एक रात को आप जग जाए पूरा, तो अर्धरात्रि के समय पे आपको लगेगा कि सब आप सेंस आपकी कम हो गए. So Navaratris are all about Ratris. It is not about day. One night, pick up your night, one night. You just keep awake. One night, एक रात को जग जाए. But sing, dance, do something creative. Don't keep sitting and keep thinking. You don't have to think. What else? और क्या कर सकते हैं? When you do things for other people, your logic drops. When you do things for yourself, you do it through your logical mind. But when you do something for somebody else, your logic drops. When you love somebody, your logic drops. When you do seva, your logic drops. When you feed someone who is hungry, you feel satisfied. Your logic drops. आपके जीवन में सक्सेस कब आता है? जब आप देते हैं. जो चाहिए वो देना पड़ेगा. So if you want rice, what should you give? You should give paddy. धान के बीज आपको जमीन पे डालने पड़ेंगे ना, तभी तो चावल मिलेगा. ऐसे नहीं मिलता. गेहूं चाहिए, you want wheat, what? You have to give wheat. ये जीवन का नियम है. This is the law of existence. This is the law of existence, which we call as Sanatan Dharma. Dharma means law. Sanatan means which doesn't go away, which is always true.
So when you give, your logic drops and something else comes in your life. Accessible आपको अगर बनना है तो ऐसी कुछ चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी. You will have to use any of these methods. Only then you'll find some kind of satisfaction, some kind of fulfillment. And this is also a method of karma dosh nivaran. Karma dosh nivaran. Tapasya is karma dosh nivaran. When you are hungry, आपके कर्म कटते हैं. When you make an effort to do something for somebody, आपके कर्म कटते हैं. So other things also can be done, like घट स्थापना, अखंड ज्योत. These are all things through which you can create a conducive situation. आप create कर सकते हैं. वो सब आप पढ़ लीजिए, इधर उधर पूछ लीजिए, सबको मालूम है. But fundamentals मैंने आपको बता दिया कि आप 9 दिन you just make yourself available. What is India all about? भारत है कि आप समझ जाइए, हम छीनते नहीं है साहब किसी से. राजा बनना है तो राजा की गद्दी से पहले वाले राजा को मार के हटा दो, ऐसा नहीं करते. वी क्रिएट कैपेबिलिटीज, अपने अंदर कैपेबिलिटी क्रिएट करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट. आप जिस लायक हैं आपको वही मिलेगा. सूत्र क्या है? व्हाट इज द सूत्र? वॉट एवर यू आर केपेबल ऑफ, यू विल गेट दैट ओनली. सो कैपेबिलिटी बढ़ाइए. दैट इज व्हाट कुंभक विल डू. ठीक है? कुंभक इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग कैपेबिलिटी, but do it gently. You are not eligible for Kumbhak, but I'm giving you. Why I'm giving you? Because I trust you that you will create capability. मैंने कुंभक क्यों दिया? आप लोग लायक नहीं हैं इसको लेने के, क्योंकि आप कुंभक करेंगे, देखेंगे आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द बढ़ जाएंगे आपके, मगर बिना उसके आप कैपेबिलिटी भी नहीं बना पाएंगे. तो इसीलिए स्टार्ट जेंटली. Make yourself available to Kumbhak. So relax when you are holding. Relax while doing your practices. अपने को लायक बनाएं इसके. And then the magic of Kumbhak will start. And then the magic of Kumbhak will start. अपने को जब आप लायक बनाएंगे, उसके बाद कुंभक करेंगे, तो magic of Kumbhak will start. एक चीज, दूसरी चीज, make yourself available for everything. Just become more sensitive towards your environment. क्या आपको मालूम है अभी क्या खुशबू आ रही है आपके आसपास में? वी आर नॉट सेंसिटिव. कितनी आवाजें सुनाई दे रही? वी आर नॉट सेंसिटिव. सो इफ यू मेक इन्वॉल्व योर सेल्फ विथ वॉट एवर यू डू, आप जिस चीज को करते हैं उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट करें. खुशबू, वासना. वासना मीन्स अ स्मेल, राइट? स्मेल कम्स आउट ऑफ पृथ्वी तत्व. ये तमस की पहचान है. पृथ्वी तत्व, विच इज योर मूलाधारा, एंड इट इज पृथ्वी तत्व. पृथ्वी तत्व वीक हो जाएगा तो आपका जीवन कमजोर हो जाएगा, आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी. तो स्मेलिंग सेंस जब आप बढ़ाते हैं तो आपका शरीर की शक्ति वापस आती है. सो स्मेल किस चीजों में कम, किन चीजों में स्मेल कम होता है? किन चीजों में स्मेल कम होता है? एनीथिंग विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड. ऑर्गेनिक लहसन लेके आओ और जीएम लहसन लेके आओ, स्मेल करके देखो. ऑर्गेनिक आलू की सब्जी बनाओ और जीएम आलू की सब्जी जो मिलता है मार्केट, ऑर्गेनिक आलू का टेस्ट आता है. आपको मालूम नहीं है कि आलू में भी टेस्ट होता है. खुशबू आएगी किचन में. तो पृथ्वी तत्व वीक कर दिया. द मोमेंट वी जेनेटिकली मॉडिफाइड थिंग्स, द मोमेंट वी पुट, हमारे बॉडी का स्मेल हमने खत्म कर दिया ना. अगर स्मेल खत्म करोगे तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी आपके बॉडी का. तो इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग. यस और नो? तो आप जो डीओ यूज करते हैं, जो फुसफुस, जो अपने बॉडी पे परफ्यूम यूज करते हो, केमिकल, जो साबुन लगाते हैं, सोप, शैम्पू, हैंड वॉश,
रूम फ्रेशनर, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशर, क्लोथ वॉशर, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड, और आगे जाऊं, ऑल एलोपैथिक स्टफ दैट यू यूज, एंटीबायोटिक क्रीम, डेटॉल, जस्ट नेम डजंट एंड, नाम ही नहीं खत्म होते। आपने स्मेल खत्म कर दी अपने जीवन से, खुशबू खत्म कर दी। जब लक्ष्मण की मृत्यु होने वाली थी, व्हेन लक्ष्मण वाज अबाउट टू डाई, व्हाट सेव्ड हिम? व्हाट सेव्ड हिम? व्हाट वाज दैट पर्वत फ्रॉम वेयर संजीवनी बूटी वाज ब्रॉट? उसको द्रोणागिरी भी कहते हैं, इट इज द्रोणागिरी, बट इसका दूसरा नाम भी है, गंध मर्दन। गंध मर्दन, दैट मीन्स वहां पे ऐसी खुशबू है जो कि किसी भी दोष को मार सकती। तो पृथ्वी, तमस इज ऑल अबाउट स्मेल, वासना इज ऑल अबाउट स्मेल। आपकी टेंडेंसीज भी स्मेल से बनती है। आपके कर्म किससे बनते हैं? स्मेल से बनते हैं आपके कर्म, क्या आपको मालूम है? तो गंध मर्दन की संजीवनी बूटी, ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ और, शिव का वीर्य। शिव का वीर्य क्या है? मरकरी, सिद्ध पारद, उसका इस्तेमाल किया गया संजीवनी बूटी के साथ में, गंधमर्दन किया गया, एंड इट कुड सेव लक्ष्मण। सो अपने जीवन में स्मेल लेके आइए। आपके भोजन में स्मेल नहीं है, अब मसाले डाल के खूब सारे स्मेल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इजंट इट? नहीं? क्या वही स्वाद है वो तोरी में जो 25 साल पहले आता था? तोरी की सब्जी में कोई मसाला डलता है क्या? आजकल आप डालते हैं और पकता नहीं है वो। इट वुड जस्ट टेक वन हीट फायर, एक आंच लग जाए वो पक जाती थी एक तोरी, और उसकी मिठास बड़ी सुंदर लगती थी। सो आपका हेल्थ वापस कब आएगा? व्हेन यू विल गेट बैक योर कर्म। कर्म से हेल्थ आता है, तमस से हेल्थ आएगा। तमस रजस के बगैर नहीं हो सकता। रजस एंड तमस क्रिएट्स लाइफ। सत्व विल गेट यू आउट ऑफ लाइफ, मुक्ति दे देगा सत्व। ज्यादा सत्व ना करें, हेल्थ नहीं मिलेगा आपको। सो रजस एंड तमस विल क्रिएट हेल्थ, इसकी वजह से हेल्थ आएगा। एंड वन फैक्टर, स्मेल, ब्रिंग बैक स्मेल इन योर, और फ्रेग्रेंस इन योर लाइफ। अपने जीवन में नेचुरल ऑर्गेनिक स्मेल लेके आए। इफ यू वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, यूज ऑर्गेनिक। एनीथिंग यू वांट टू यूज ऑन योर बॉडी, यूज ऑर्गेनिक। फूड, ट्राई टू गो टुवर्ड्स मोर एंड मोर ऑर्गेनिक। एटलीस्ट लहसुन, टमाटर, प्याज तो ऑर्गेनिक ले आओ, दालें तो ले आओ ऑर्गेनिक। मिलेगा कब? जब आप डिमांड करेंगे। आप मांग नहीं रहे तो कौन देगा आपको? आप मांगोगे तो वही मिलेगा। तो आप तो अमेरिका को वेपन बनाने के लिए पैसा देते हो ना। आपके जीवन का एक ही मकसद है, अमेरिका को चौधरी बनाओ। मुझे नहीं समझ में आता क्यों बना रहे हो। वो आपको ही मार रहा है, वही उसका सीआईए यहां पे आके बम बम ब्लास्ट करवाता है आईएसआई के साथ। देखो अभी कितने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं ना, वो सब फंडेड फ्रॉम सीआईए, आईएसआई। आप पैसा देते हो, वही पैसा आपको आपको फोड़ देते हैं आके वो, उस पैसे से। व्हाट आर यू डूइंग? अब जब भी, वेन एवर यू बाय अ पिल, एक दवाई खरीदते हैं तो अमेरिका को पैसा जाता है। वेन एवर यू बाय प्रॉक्टर एंड गैम्बल प्रोडक्ट, आप उनको पैसा दे रहे हो कि आओ भाई, आ बैल मुझे मार। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप खुद बना सकते हैं, वो कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी होती है। टेक्नोलॉजी तो
आपके पास जब मर्जी आ जाए, यूज योर माइंड. Indians are the most intelligent people on the whole earth. The only thing is they are slave to their education. And they think they are slave to West. इसको उतारिए, आप साइंस में आइए, रियल साइंस में. आपका खून है साइंस. खुशबू लेके आइए, आपकी हेल्थ सुधर जाएगी. ठीक है, शक्ति लेके आइए, आपकी हेल्थ सुधर जाएगी. और ये वही काम कर रहा है ना कुंभक. कुंभक करते ही एनर्जी आती है ना बॉडी में. ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते, मां की कुछ भी हो. तो कुंभक शक्ति है. और ये 9 दिन है, 9 days तो एक्चुअली एक्सेस शक्ति. थोड़ा सेलिब्रेट करें, कुछ सुंदर पहने, कुछ सुंदर खाएं, कुछ बनाएं, कुछ दूसरों को बांटें, थोड़ी सेवा करें, थोड़ा नाचें, थोड़ा गाएं, रात को जगें. अपने कभी अगर कैपेबिलिटी है, कभी करवा लो जगराता. एक रात जगने का मौका मिलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वॉट एवर इन योर कैपेसिटी. नॉट नेसेसरली कि आप ऐसा कुछ करें, ऐसी जरूरत नहीं. बट दिस एनर्जी इज अवेलेबल फॉर एवरीवन. ये एनर्जी जो है ना, ये आदमी में डिफरेंशिएशन नहीं करता. That you are doing this, somebody is not fine. Only you can be available or not available. That's it. You can be available or you are closed. But I am saying, if you are not available to life, what is worth living? हाँ, अब एक स्माइल करिए. सभी 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 स्माइल करो. कर सकते हैं कि नहीं? एक स्माइल कर सकते हैं. कैसे स्माइल कर लिया? बैंक बैलेंस बढ़ा है क्या? नहीं. तो क्या क्या कंडीशन थी? कौन सा एग्जाम पास किया ये स्माइल करने के लिए? कुछ भी नहीं. केवल एक चीज थी, आप चाहते नहीं थे स्माइल करना. सो आपकी इच्छा पे आपका जीवन निर्भर है. आपके अंदर तो आप जब मर्जी अच्छा का बना सकते हो. एक गीत गाएंगे तो भी अच्छा लगने लग जाएगा, थोड़ा नाचेंगे तो भी अच्छा. ज्यादा बच्चों को लॉजिक पढ़ाने लग जाओ, ये छोड़ दो, ये सब काम छोड़ दो. You just celebrate. There is a little opportunity of celebration. You have a family, you have few people who are with you. एक छोटा, कल को नहीं होगा कोई उसमें से. A very short time to celebrate. मौका चाहे नहीं मौका, remember this. Please celebrate. नवरात्रि मौका बन गया ना, ये तो मौका ही है ना. बट अदरवाइज ऑल्सो कोई नवरात्रि नहीं मना रहे, क्या जरूरी है? नहीं. बट दिस इज अवेलेबल टू एवरीवन. Celebration is available to everyone. Health is all about laya, mahalaya आज है. Health is all about the rhythm in which your body functions. The more you dance, the more you celebrate, the more you sing, the more you do creative work, the more you do things for others, your laya will get in tune. आपका rhythm tune में आ जाएगा, ट्यूनिंग हो जाएगी उसकी. और फिर देखिए आपके जीवन का एक सुंदर अध्याय शुरू हो जाएगा. सो विद दिस विल एंड दिस सेशन. बहुत ज्यादा देर हो गई. हाँ, सो विल ऑल्सो शेयर इट विथ people in the group also. Recording is and we'll also put this recording in the Fami Raj Vibhu channel. अगर जीवन अपने लिए जिया तो क्या जिया, कभी दूसरों के लिए भी जियो, मजा तब आएगा. So it is responsibility, or it is everybody's responsibility, that whatever you understand. If I'm saying something, कुछ मैंने बोला, आपको कुछ कहीं को तो कोई बल्ब जला होगा, कुछ अगर खुलता है, प्लीज दूसरों को भी समझाएं. Please make it available to everyone. Make life available to everyone.
शेयर करें चीजों को, बताएं, है ना, आपकी जिम्मेदारी है। जिस दिन आप अपने से हटके, अपने मतलब से हटके कुछ और करने लग जाते हैं, उस दिन पहली बार आपके जीवन में कृपा प्रविष्ट होता है, ग्रेस का एंट्रेंस होता है। अच्छा, एक स्टोरी सुना देता हूं चलो जाने से पहले क्योंकि वो स्टोरी बहुत जोर से आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, थोड़ा समझा देता हूँ। सो देयर वाज अ वेरी वेरी पुअर पर्सन, बहुत गरीब इंसान था, एंड ही वुड सिट एट अ प्लेस, एक चौक पे बैठ बैठ के भीख मांगता। एंड दिस इज द टाइम व्हेन द महाभारत वॉर वाज ओवर। ठीक है, महाभारत के का युद्ध खत्म हो चुका था। सो कृष्णा एंड अर्जुन every night would go to actually take a walk across the whole राज्य, द होल प्लेस। उसमें रात में थोड़ा घूमते थे, वो देखते थे किसी को कोई परेशानी तो नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ। सो दे वर वॉकिंग थ्रू दैट एरिया एंड दिस बेगर सॉ देम। इस भिखारी ने देखा तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, सुंदर, he said इनके पास पैसा है। So he went there and said कि I am very very. So when he went closer, he said, "Oh, I know these two. इन दोनों को तो मैं जानता हूं. They are the big ones, the heads." So अब तो और मजा आ गया. So I am very very poor. कुछ दे दो मुझे. So what happened कि अर्जुन को बड़ा लगा कि ये गरीब कैसे है? How is this person poor? So took out a ring from his finger. एक अंगूठी, बड़े कीमती हीरे का अंगूठी निकाला, ताकि दिस विल बी सफिशिएंट फॉर इवन योर नेक्स्ट जनरेशन। आगे की जनरेशन के लिए भी ये काफी है, जाओ ऐश करो। सो एंड ही स्टार्टेड डांसिंग। ओ मेरी तो किस्मत पलट गई, राइट, मेरी किस्मत पलट गई, माय फॉर्च्यून इज लाइक टेकन अ टर्न। And he was shouting even after when both of them were out, they were gone. He was just dancing, खुश हो गया बहुत ज्यादा। तो देयर वाज अ थीफ, एक चोर था, उसने देखा कि ये खुश क्यों हो रहा, व्हाई इज ही डांसिंग? He saw a very 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 precious diamond in his hand. वो अंगूठी डायमंड की, वो मौका मिलते ही छीन के भाग गया। And the beggar was a beggar again. ठीक है। So he started crying, went to his house. वहां पे उसकी वाइफ कहती, रो क्यों रहा है भाई? So he told the whole story. So wife said कि you again go back tomorrow in the same place, क्योंकि अगर वो यहां से आते हैं तो शायद कल भी आ जाए। Next evening again the beggar was in the right place, and again Krishna and Arjun were going through that area, and Arjun saw that beggar and said, what are you doing here? यहाँ पे क्या कर रहा है तू? I gave you that ring. So he said he said the whole story कि वो मेरे से छीन के भाग गया। So Arjun had a bag full of coins, gold coins. वो उसको पकड़ा दिया, कहा कि जा इसको लेके जा। So this time the beggar was very very cautious. He didn't jump, है ना, खुश नहीं हो रहा, नाच नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप से slowly he went back to his home. उसने कहा वाइफ को भी नहीं बताना, वो सो रही है, उसको सोने दो, नहीं बताना। And he put the whole bag, small potli, in a pot, earthen pot, मटका था, which was not used, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसमें डाल दिया। ओके, देयर इज अ मिसमैच। पहली बार गोल्ड कॉइन से सेकंड टाइम पे रिंग था, ठीक है ना, गोल्ड कॉइन तो चोर लेके भाग गया। नाउ दिस टाइम वाज रिंग।
So he put the ring in the earthen pot and went to sleep. तो सुबह उसकी आंख कैसे खुलती है? When his wife came with water, वो नदी से पानी लेके आई, and he got up and suddenly saw the pot and it was not there. वो जो मटका था वो था ही नहीं वहां. And he said, ये यहां पे मटका था, कहां गया? Where has it gone? She said, वो last one was broken, वो टूट गया. So I took this pot to the river. So something came out of that pot. क्या देखा तुमने उसमें कुछ गिरा? She said, हाँ कुछ तो गिरा था. There was a sound. Then it fell in the river. He was beggar again. तीसरे दिन भी उधर ही जाके बैठ जा. Third day again went to the same place. Again Krishna and Arjun coming. This time Arjun saw, अपनी तलवार निकाल लिया. क्या कि तेरे को you are doing some kind of a लोचा. कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तू. हाँ मुझे बेवकूफ समझा तो ना. Prank, you are doing some prank. तो वो बेचारा चुपचाप, but he didn't do anything. Said कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. You can kill me, but I'm telling you the fact. So Arjun said, तेरी तो किस्मत ही खराब है. तेरे को कुछ नहीं हो सकता. तू कभी पैसा नहीं आ सकता तेरा. तेरी किस्मत खराब है. What should he say? कुछ क्या कहे वो? कुछ कहने लायक था ना. Then Krishna gave him 3 कौड़ीज. कौड़ी होता ना जो पहले ऐसे खेलते थे, पहले वो उसको एज एन एक्सचेंज भी इस्तेमाल किया था. नाउ कौड़ी इन दोज डेज ऑल्सो इट वॉज नॉट ऑफ दैट वैल्यू. गोल्ड सिल्वर हैड वैल्यू. कौड़ी का क्या वैल्यू? कम, बहुत कम वैल्यू. So he gave him 3 कौड़ीज. So he took that kaudi and he was going to back to the home. There he saw somebody, a fisherman, who caught some fish. एक फिशरमैन ने कुछ मछलियां पकड़ी and one of the fish was actually jumping very high. बहुत तड़प रहे थे. तो इसको अच्छा नहीं लगा देखते. He didn't feel good. He said, ये ज्यादा उछल रही है, इसको छोड़ दो ना. Leave that fish. The fisherman said, oh, इसके पैसे दे दे, मैं छोड़ दूंगा. You give me the money, I'll leave this fish. He said, I don't have money. I am a beggar. Where would I get money from? But I have these 3 kaudis. If you can give me this fish in these 3 kaudis, then I'll put the fish back in the river. So fisherman said, 3 kaudi में कोई मछली आती है? So he started kind of a begging from him. See, I am a beggar. मेरे पास पैसा नहीं है, तो 3 कौड़ी का दे दो. एक दिन थोड़ा सा ऐसा सोच, मुझे दया आ रहा है इस फिश. तो फिशरमैन ऑल्सो थॉट, ओके, इसके इतना इच्छा है, ऐसा मैंने कोई देखा तो नहीं पहले. आई डिडंट सी एनीबॉडी डूइंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग. बट ओके, ठीक है, ले दो. सो ही कॉट होल्ड ऑफ द फिश. उसने जोर से पकड़ा उसको, क्योंकि वो उछल रहे थे. शी वॉज जस्ट जंपिंग. उसने जोर से पकड़ा और उसके मुंह से अंगूठी निकल के आ गई जो नदी में गिर गई थी. द रिंग केम आउट because the ring was stuck. That is why the fish was actually jumping. He got the ring back. So he started shouting, oh, मिल गया, I got it. और उसके सामने ही वो thief भी आ गया. He was coming to him कि ये कर क्या रहा है. एकदम से सामने वो thief आ गया. And he said, मुझे मिल गया. Thief said, oh, he is some kind of a friend with Krishna and Arjun, because every day I see him with them. तो अगर वो चाहे तो मुझे कभी भी पकड़ लेंगे. तो उसके पास में आया, कहता, मेरी शिकायत मत करना. Don't complain about me to Krishna and Arjun, otherwise I'll be killed. तुम अपना थैली ले लो सोने के सिक्के का. He also got the money back, the
coins back. Now he was super rich. Now the fourth day, again he went back to the same place, waiting for Krishna and Arjuna. And they came and they saw, and this time he was actually smiling. Arjun asked, now what is the story? Ab kya story sunane wala hai tu? And no, there is no story. I just want to ask one question to Krishna. And Krishna said, what? He asked, the gold coins couldn't change my fortune. उस सोने के सिक्के ने मेरा भाग्य नहीं बदल पाया. The ring, diamond ring couldn't change my fortune. उस डायमंड के रिंग ने मेरा भाग्य नहीं बदला. How could 3 कौड़ीज change my fortune? ये 3 कौड़ी ने मेरा भाग्य कैसे बदल दिया? And Krishna said, no, you are looking in a wrong direction. It is not kaudis. For the first time, you thought something about somebody else. You felt something about somebody else. पहली बार जीवन में तुमने अपने अलावा किसी और का ज्यादा ख्याल किया, अपने से ज्यादा ख्याल किया. तुमने किसी की तड़प में तुम तड़प गए, दुखी हो गए. तो किसी और को लेके तुम दुखी हुए जीवन में पहली बार. उसने तुम्हारा भाग्य खोल दिया. सो आप लोग खूब खूब भाग्यशाली हो अपनी लाइफ में. अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सेलिब्रेशन के रूप में. सेलिब्रेट योर लाइफ. डोंट ट्राई टू लिव फॉर एवर. लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ. इसी के साथ विल एंड दिस सेशन. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन ज्वाइन करने के लिए. और स्वामी राजविभू की गद्दी से खूब खूब आशीर्वाद. Good luck to all the participants and शुभ रात्रि और नवरात्रि की शुभकामनाएं. Stay well, stay happy. Thank you so much.